Hello everyone, I'm Shweta Goyal and welcome back to all of you on my channel Easynomics. And after a long time, I got this chance again to connect with you and thank you everyone for sending me so much warm wishes for my selection. Thank you so much. I was very overwhelmed with all those wishes, and I'm sorry I couldn't reply all of your to all of your comments and everything, but I'm here to resume with the series which I started for the economics optional. I already completed the microeconomics, where the last topic is left, that is your distribution welfare theories. That I'll cover later on. But in today's class, I'm going to begin with the macroeconomics. So in today's class, we are going to begin with the classical theory, and it will be a short lecture of 15 to 20 minutes where I'll be covering entire the labor market equilibrium of classical models, and I'll also be giving you the basic idea about the macroeconomics, that what all you need to study here. So that is the agenda for the today's class. Let's start with the class. And if you haven't liked, share and subscribe my channel, please do it so that you will be updated about all the relevant and new materials. So yeah, let's get started. So we are beginning with the macroeconomics, right? So macroeconomics में we have to study like 4-5 theories. There are only 4-5 theories which you need to study under, जो इसमें आपकी 4-5 theories ही हैं जो आपको पढ़नी है. For just give me a second, let me change the color of the pen. यस, सो इसमें आपको 4-5 थ्योरीज पढ़नी है. 4-5 थ्योरीज में बस वही है, अगर आपने वो 4-5 थ्योरीज अच्छे से पढ़ ली तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा. सो इफ आई टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. So yeah, if we talk about the macroeconomics, so in macroeconomics, we have to study the theory of classicals, the theory of neoclassicals, the theory of neoclassicals. Then you have to study theory of Keynesian. Then you have to study theory of new Keynesian and neo Keynesian. ठीक है, तो हमें ये 6 तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट ये पढ़ना है. इसके अलावा व्हाट वी हैव टू स्टडी, इसके अलावा हमें पढ़ना है एक फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट, एक ऑकुन्स लॉ का कॉन्सेप्ट, एंड एक हमें पढ़ना है इसके अलावा द मॉनेटरिस्ट अप्रोच, या फिर वो आप मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ सकते हो. बेसिकली फॉर द टाइम बीइंग आपको ये चीजें पढ़नी है फॉर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज द. और अगर आपने सिर्फ ये 6-7 चीजें पढ़ ली, then trust me, आपका पूरा macro economics का portion prepare हो जाएगा. Now whatever I'll teach you, I'll be continuous. That's my promise to all of you. Whatever I'll teach you, you just need to read it from for that portion from the Freud. एंड जैसे ही आप फ्रॉइड पढ़ते चले जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे. और जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, इसकी जो पीडीएफ होगी, दैट आई विल बी अपलोडिंग इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी चेक कर सकते हो. ठीक है, तो हम आज की क्लास में शुरू करेंगे विद द क्लासिकल्स थ्योरी. आई विल नॉट टेक योर मच टाइम एंड आई विल बी वेरी शॉर्ट, वेरी क्रिस्प एंड विल बी कवरिंग द टॉपिक्स. ठीक है, कुछ भी छोड़ूंगी भी नहीं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिकल्स थ्योरी. अब देखो, जब भी आप कोई भी थ्योरी पढ़ोगे ना, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उस थ्योरी की अजम्पशन, उस थ्योरी का इक्विलिब्रियम एंड उस थ्योरी पे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के इफेक्ट्स, दैट वी हैव टू स्टडी फॉर ईच एंड एवरी थ्योरी. जितनी भी मैंने आपको 6 थ्योरीज दी है, आपको हर एक थ्योरी की अजम्पशन, इक्विलिब्रियम and the fiscal and monetary policy, which policy is effective, that we have to study under each and every theory. So अभी हम क्या करेंगे, first we will begin with the assumptions and we will study the assumptions of classical theories. So let's see the assumptions. So जो आपकी assumptions हैं, उसमें आपकी जो सबसे पहली assumption है, that is वो है आपकी complete wage price flexibility. Complete wage price flexibility.
इसका मतलब क्या है कि आपकी वेज और प्राइस में कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है as soon as you will face the situation of or excess supply or excess demand or shortage of supply, shortage of demand, then this situation is going to affect the price situation in the economy, and that price situation is immediately going to affect the wages in the economy. So if you will have 10% increase in the price in the economy, then simultaneously and immediately, spontaneously, your wages will also increase by the 10%. And if your prices decreases, then your wages will also decreases. So that is the meaning of complete wage price flexibility, that जैसे ही प्राइस में चेंज आएगा उस हिसाब से वेजेस में भी चेंज आएगा। अगर प्राइस बढ़े तो वेजेस ज्यादा डिमांड होंगी, अगर प्राइस कम हुए तो वेजेस भी कम हो जाएंगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ योर कंप्लीट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, यस, सो ये हो गया आपका क्या, कंप्लीट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि whatever there is, if there would be any change in the prices in the economy, your wages will change immediately in the economy. That is the meaning of your complete wage price flexibility, and immediately change hota hai without any time gap. Then your second assumption says that supply creates its own demand. Supply creates its own demand. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आपकी जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेगी। कैसे क्रिएट करेगी? व्हाटएवर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी विल बी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होने का रीजन ये है, लेट्स से मैंने इस पेन का 100 का प्रोडक्शन किया, मैंने इस पेन का 100 यूनिट्स प्रोडक्शन करी। अब मैं बोल रही हूँ कि लेट्स से डिमांड अभी भी 100 ही है, लेकिन मैंने इस पेन का खुद से 150 प्रोडक्शन कर दिया। तो जब मैंने इस पेन का 150 प्रोडक्शन किया होगा, तो जो मैंने एडिशनल 50 प्रोडक्शन किया होगा, मैंने उसके लिए लेबर हायर करी होगी। अगर मैंने उसके लिए लेबर हायर करी है तो मैंने उनको वेजेस पे करी होगी। अगर मैंने उन्हें वेजेस पे करी है तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो इनकम बढ़ गई है, एंड फिर वो मार्केट में जाके डिमांड भी बढ़ा देंगे। तो आपकी जो भी आप सप्लाई करोगे इकोनॉमी में, उसकी अपनी डिमांड हो जाएगी। इसकी दो इम्प्लीकेशन है। पहली ये है, इकोनॉमी विल ऑलवेज रिमेन एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एंड सेकेंड इज देयर विल बी नो इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। क्योंकि देखो, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? मैं काम ढूंढ रही हूँ लेकिन डिमांड कम थी, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट कम थी, मुझे किसी ने जॉब दी ही नहीं। लेकिन जब जो भी जितना भी प्रोडक्शन करोगे उसकी डिमांड हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? मैं क्या करूंगी? आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस। ठीक है, मैं क्या करूंगी? आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस, बिकॉज मुझे पता है भाई, मैं जो भी सप्लाई करूंगी उसकी डिमांड हो जाएगी। So supply creates its own demand, complete wage price flexibility. These are the two most important assumptions of the classicals, basic classicals जो theory आई थी। Then इसकी third assumption आती है that you have perfect competition in both factor market and product market. फैक्टर मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट, इसका क्या मतलब है? फैक्टर मार्केट का मतलब है, जैसे मैं ये पेन का प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो जो ये मेरा फाइनल पेन बन के तैयार होगा, ये मेरी प्रोडक्ट मार्केट होगी कि इस पेन की कितनी डिमांड, कितनी सप्लाई है। लेकिन फैक्टर मार्केट का क्या मतलब है? फैक्टर मार्केट का मतलब है कि भाई, मैं इस पेन को प्रोडक्शन करने के लिए मैं कितने लेबर ले रही हूँ, मैं कितना रॉ मटेरियल ले रही हूँ, तो उस लेबर की मार्केट और उस रॉ मटेरियल की जो मार्केट होगी, दैट विल बी नोन एज योर फैक्टर मार्केट। कि लेबर की डिमांड कितनी है, लेबर की सप्लाई कितनी है, दैट इज योर फैक्टर मार्केट। और जो ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, इसकी कितनी डिमांड एंड सप्लाई है, दैट इज योर प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, एंड फोर्थ अजम्पशन है आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्रोडक्शन फंक्शन। डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्रोडक्शन फंक्शन, जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या मतलब है? जो पहला लेबर है, अगर वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो जो सेकंड लेबर होगा वो 90 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। थर्ड लेबर विल प्रोड्यूस 80 ओनली, एंड फोर्थ लेबर विल प्रोड्यूस 30 ओनली, एंड द फिफ्थ लेबर विल प्रोड्यूस 20 ओनली। तो यू हैव द डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन द प्रोडक्शन फंक्शन। So these are your four assumptions
assumptions of the classicals which are most important assumptions and which defines the entire model of classicals. So clear with the assumptions? Let's move further and let's study about the production function of classicals. Let's study about the production function of classicals. तो जब मैंने आपको माइक्रो पढ़ाया था, माइक्रो में मैंने आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ाया था। उस लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में, प्रोडक्शन में, माइक्रो में 3 फेजेस में काम होता है। 1 व्हेन योर टीआर इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, सेकंड व्हेन योर टीआर इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एंड थर्ड व्हेन योर टीआर डिक्रीजेस। ठीक है। और व्हेन इस फेज में क्या होता था, एमआर बढ़ता था, दूसरे फेज में एमआर कम होता था, 0 पे जाता था, और तीसरे फेज पे एमआर नेगेटिव हो जाता था। लेकिन ये हमने माइक्रो की बात करी थी। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम मैक्रो की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इज द कलेक्टिव ऑफ माइक्रो। मैक्रो में माइक्रो का कलेक्टिव है। अब माइक्रो में हम हमेशा सेकेंड फेज पे रहना चूज करते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म में भी सेकेंड में ही रहेंगे। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल्स के प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये सेकेंड वाला फेज लेते हैं। तो इसीलिए जो हमारा क्लासिकल्स का प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। क्लासिकल्स का जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो ये होता है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर। y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर। यहाँ पे आई एम टेकिंग लेबर आवर्स और यहाँ पे आई एम टेकिंग आउटपुट और कह लो या फिर इनकम कह लो। तो ये मेरा क्या आ गया, प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर मैं इसी से अपनी एमपीएल डिराइव करूं, सो इट विल बी, माय एमपीएल विल बी दिस। डिमिनिशिंग रिटर्न्स है तो माय एमपीएल क्या होगी, ये वाला डिमिनिशिंग वाला पोर्शन आएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एमपीएल और यहाँ पे मैंने ले लिया लेबर आवर्स। सो क्लियर है सबको? दिस थिंग इज क्लियर। प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो क्लियर, assumption क्लियर, प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर। Now let's see कि what is the meaning of labor market। सबसे पहले हमें क्लासिकल्स में पढ़ना है लेबर मार्केट के बारे में। जो आपकी लेबर मार्केट है, उस लेबर मार्केट में 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एक आपकी है लेबर डिमांड और एक आपकी है लेबर सप्लाई। एक है आपकी लेबर डिमांड, एक है आपकी लेबर सप्लाई। तो जो आपकी लेबर डिमांड है उसका मतलब ये है, एट डिफरेंट वेज रेट हाउ मच लेबर इज डिमांडेड बाय द प्रोड्यूसर। जैसे मैं इस पेन का प्रोडक्शन कर रही हूं, आई एम डूइंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस पेन। सो एट डिफरेंट वेज रेट और एट डिफरेंट वेज रेट how much labor I am going to demand in the economy, how much labor I am going to demand in the economy. So if I will give you the like the proper definition, then the definition will be relation between, it means the relation between labor hour employed and wage rate that firm is willing to pay. That firm is willing to pay. That is the meaning of your labor demand. And if we talk about the labor supply, तो labor supply का क्या मतलब होता है? It is the relation between, wage rate and willingness to work of labor। ठीक है। तो लेबर डिमांड का मतलब है डिफरेंट वेज रेट पे कितनी लेबर को मैं हायर करूंगी, एंड लेबर सप्लाई का मतलब है एज अ लेबर डिफरेंट वेज रेट पे हाउ मच आई एम रेडी टू वर्क। मैं कितनी लेबर सप्लाई करना चाहती हूँ। अगर मैं लेबर हूं, दैट इज माय लेबर सप्लाई कर्व। एंड लेबर डिमांड कर्व का मतलब है रिलेशन बिटवीन लेबर आवर एम्प्लॉयड एंड द वेज रेट दैट फर्म इज विलिंग टू पे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ योर लेबर मार्केट। लेबर मार्केट का ये मतलब तो खैर आपको ये 2 कीवर्ड्स पता होने चाहिए, दैट लेबर डिमांड एंड द लेबर सप्लाई कर्व। लेबर डिमांड and the labor supply curve. Now we have to plot it diagrammatically and then we have to see the equilibrium of this commodity. So basically इसमें हमारा क्या है, जैसे मान लो एक लेबर है आपका,
उसको आप वेज रेट पे करते हो W, उसको आप कितनी वेज रेट पे करते हो W, ठीक है। अब आप कितनी लेबर डिमांड करोगे, हाउ मच लेबर यू विल बी डिमांडिंग। जैसे देखो मैं एक टेबल ले लेती हूँ, ये है आपके लेबर आवर्स। तो आपने पहला 0 लेबर, 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर, इनकी जो एमपीएल है वो डिमिनिशिंग है, लेट्स से 10, 8, 6, 4, 2। देन इसके जो प्राइजेस हैं, दैट इज आपके प्राइजेस तो पेन के सेम रहेंगे, 10, 10, 10, 10, 10। अब आपकी विलिंगनेस टू पे कितनी होगी, हाउ मच यू विल बी विलिंग टू पे, कि यहाँ पे प्राइस कितना है 10 एंड उसका प्राइस कितना है 10, तो ये आपकी हो गई 100, 80, 60, 40 एंड 20, ठीक है। 100, 60, 80, तो ये आपका क्या आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो दिस रिफ्लेक्ट्स योर डिमांड कर्व, दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट, योर डिमांड कर्व। ये हमारा इसको, और हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं VMPL, इसको हम क्या बोलते हैं, VMPL। VMPL का क्या मतलब होता है, प्राइस इनटू में MPL, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एक लेबर ने कितनी प्रोडक्टिविटी की और उसको मैंने कितने रुपए में बेचा। जैसे मेरा एक लेबर है, उसने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया और 10 यूनिट को मैंने 100 रुपए में बेचा, तो मेरी टोटल प्रोडक्ट वैल्यू कितनी होगी, 100। दैट इज द मीनिंग ऑफ योर VMPL। उसका क्या मतलब होता है, उसको पूरा क्या बोलते हैं, VMPL। तो VMPL जो होता है वो आपका लेबर डिमांड कर्व होता है। VMPL जो होता है वो आपका लेबर डिमांड कर्व होता है। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं डायग्राम पे, दैट इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये होता है आपका VMPL विच इज योर लेबर डिमांड कर्व विच शोज विलिंगनेस टू पे। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आप उसको कम वेजेस पे करोगे। सो ये हो गया आपका VMPL, और यहाँ पे मैंने ले लिया लेबर आवर्स, ठीक है। और जो मेरा लेबर सप्लाई होगा दैट विल बी माय अपवर्ड स्लोपिंग। लेबर सप्लाई कर्व मेरा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, बिकॉज मुझे जितनी ज्यादा वेजेस मिलेंगी मैं उतना ज्यादा काम करना चाहूंगी। इसके साथ ये अजम्पशन है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है दैट योर विद द अजम्पशन दैट योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन योर इनकम इफेक्ट, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी पिछली माइक्रो की सीरीज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो इसीलिए हमने क्या करा है, लेबर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका क्या होगा, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका क्या होगा, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ पे लूंगी वेज रेट, यहाँ पे मैं लूंगी लेबर आवर, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम होगा, ये मेरी वेज रेट होगी जिसपे काम होगा, और ये मेरे लेबर आवर्स होंगे। सो दैट इज नोन एज माय इक्विलिब्रियम, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट थिंग, वी हैव टू स्टडी दैट आपका लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई कर्व किन किन रीजन से चेंज हो सकता है। सो जो आपका पहला रीजन है, पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेबर डिमांड कर्व, factors affecting the labor demand curve, and then we'll see factors affecting the labor supply curve, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ये पेन 10 रुपए का बेच रही हूँ तो मैं 10 लेबर हायर कर रही हूँ, अब ये पेन मैं 15 रुपए का बेच सकती हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैं क्या करूंगी, प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी, प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी तो मैं लेबर डिमांड भी बढ़ाऊंगी, सो लेबर डिमांड भी बढ़ जाएगा। सो प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ने से लेबर डिमांड विल इंक्रीज, ठीक है। और अगर मैं यही बात करूं प्राइस ऑफ द कमोडिटी की, अगर मैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात करूं तो उसकी वजह से इस पे क्या असर पड़ेगा, इससे क्या होगा, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ गया है तो प्राइस ऑफ कमोडिटी के बढ़ने की वजह से अब मैं क्या करूंगी, मेरी पहले वाली वेजेस में मैं कम सामान खरीद सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, अपनी सप्लाई को कम कर दूंगी, या मैं अपना लेबर सप्लाई कर को अपवर्ड शिफ्ट करूंगी। मतलब आई विल बी आस्किंग कि भाई सेम घंटे काम करने के लिए मुझे ज्यादा वेजेस चाहिए, और वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, लेबर सप्लाई कर को अपवर्ड शिफ्ट करके। तो लेबर सप्लाई कर विल शिफ्ट अपवर्ड। Second factor which affects the labor demand in the economy is your investment in technology. अगर आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तब भी आपकी लेबर डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अगर आपकी कैपिटल बढ़ेगी
तब भी आपका क्या होगा, लेबर डिमांड बढ़ जाएगी। सो बेसिकली तीनों ही केसेस में आपका लेबर डिमांड क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसमें हमने प्राइस ऑफ द कमोडिटी में देख लिया, इट विल मेक इट शिफ्ट अपवर्ड्स। देन इसका सेकेंड रीजन जो अफेक्ट करता है बेसिकली चेंज इन बिहेवियरल प्रेफरेंसेस। जैसे मान लो अब विमेन्स को काम मतलब सबका माइंडसेट चेंज हो गया, नाउ पीपल आर अलाउइंग टू डू मोर जॉब्स, विमेन्स को अलाउ कर रहे हैं, तो हमारी लेबर सप्लाई बढ़ गई। देन थर्ड आपका आता है इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। इन दोनों ही केस में या तो लोग यहाँ से चले जाते हैं या यहाँ पे आ जाते हैं, दोनों ही केस में क्या होता है, आपका लेबर सप्लाई बढ़ जाती है या कम हो जाती है। सो दीज आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स दी लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड एंड लेबर इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इनके जो इफेक्ट्स हैं वो डायग्रामेटिकली आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। मैं बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगी, वी विल गो स्लो, छोटी छोटी वीडियोस रखेंगे, छोटी छोटी वीडियोस में जल्दी जल्दी कंटेंट्स खत्म करेंगे। आज मैंने आपको लेबर मार्केट पर पढ़ा दिया, आप ये सारा बुक से कवर कर लेना। मैं ये वाली पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, माइक्रो की सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अपनी इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। और अनअकैडमी पे पेपर 2 पढ़ा रही हूँ, बट वहां पे यू हैव टू पे फॉर दैट। इफ एनीवन वांट्स टू एनरोल फॉर द पेपर 2 कोर्स, आप वो भी कर सकते हो। बाकी मैं फ्री के प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रही हूँ वहां पे, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड होगी तो यू विल बी नोटिफाइड बाय इट। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।